आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? Today we are going to discuss covariance, correlation, and regression. In the last lecture, we studied the properties of variance. And today, we have to analyze the study of two variables. That is basically the concept of one variable and two variable. When we have one variable, mean and variance of variable. So now we were analyzing mean and variance of one variable. Or we can say that descriptive measures of variable. But today we are going to describe two variables, mean and variance, covariance, correlation. So that is basically the topic that we are going to study today. The two variables are known as bivariate. Bivariate is what? Whenever we are analyzing two variables, it is called bivariate. Or whenever we are analyzing one variable, it is called univariate. Univariate and bivariate, these are the two terms that we generally have in analysis. Sometimes we have many variates, or we call it as a multivariate. More than two variates is called what is multivariate? Multivariate is an analysis of more than two variables. Multivariate is an analysis of more than
So today we have also to give a quiz on the previous topic. That is the mean and variance of univariate. So that is basically the contents of the last two lectures, and we have to take a quiz of that previous concept. Now, study of two-variate known as bivariate. Today, we are analyzing two-variates. Example of is this. X is a variable representing age of car. Y is a variable representing price of car. Age of car and price of car are the two variates. What can we say about is there any relationship among these two variates? Is there any relationship in these two variates? This is a question. Can anyone of you have idea about the two variates and the relationship? Car is common. We can't understand what is the meaning of car is common. What your question is? जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी कार की उतनी प्राइस कम होती Relationship जाएगी. means what? Relationship means what effect of price of car is on if the age of car is changes. If the age of car is increased, what is the behavior of price of car? Anyone have idea about if the age of car increases, what is the behavior of price of car? Age increases, then price decreases. ठीक है Mariam, is correct. And vice versa. And vice versa means what? If the age is decreases, or another word we can say that age decrease तो होती नहीं है. The new car, relatively new cars having high price. Okay. Relative new cars. New cars means the cars having the less age impact of high price, and the cars having too old will become, because age becomes
inversely related to the price. Age and age of car and price of car are basically inversely relation to each other. So we can say that there is a strong relationship between these two variables. Age of car and the price of car having a relationship among these two variables. And what that sort of relationship is, this relationship is called negative correlation or the negative relationship. What the negative relationship is, negative relationship, positive relationship और no relationship. ये तीन टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं, या यूं कह लें हम कोरिलेशन जो हैं वो तीन टाइप्स के हो सकते हैं. नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव रिलेशनशिप, positive relationship, positive correlation, or no relation means independent variable. Independent variable. What the independent variables are? Independent variables are, there is no effect of age of car on the price. But that is not the case in my example. In my example, there is a high impact of age of car on the price of car. The negative relationship means positive or directly. A negative relationship means inversely proportional. Positive relationship, negative relationship, and in my case or in my example, is an example of is an example of positive relationship. Sorry, it is an example of negative relationship. Negative relationship, why? Because if one variable increases, the other variable decreases, and vice versa. If I introduce one more variable here, this is Z. Balki my question is to you, if I introduce one more variable here, which is named as Z, which have a positive relationship between X and Z. No, X and Z, nahi, between Y and Z. It was the relationship between X and Y, which was negative. Now I am going to describe the relationship between X and Y and Z. Y increases, Z will increases, and vice versa. If Y increases, Z increases, or Y decreases, Z decreases. That is a positive relationship. So can you introduce the name of this variable in my example? What is Z in my example? Model of car. Model of car, instead of saying model of car, Aisha, model can also be have a positive correlation, but instead of using the term model of car, I am using the term number of cars.
नंबर ऑफ कार्स से तो नहीं होगा ये. You have to specify the characteristic of one car, not collective characteristic. So I'm going to describe the new variable as condition of car. Condition of car means what? The better condition give you the higher price, and the poor condition will give you the lesser price. It means if the condition is rated among the scale of 1 to 10, 10 means the very good condition, or 1 means the very poor condition, and price is also a case in this example, then the better condition will give you the higher price, and the poor condition will give you फाइव पर मॉडरेट प्राइस होगी. 5 पर जो प्राइस आएगी वो मॉडरेट प्राइस होगी. मॉडरेट प्राइस का मतलब क्या है? दरमियानी होगी. जैसे 10 के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा उसी कार की प्राइस मिल रही है, तो 5 के ऊपर हमें एवरेज प्राइस मिलेगी और 1 के ऊपर हमें सबसे कम प्राइस मिलेगी. इसी तरह से अगर हम ये कह रहे हैं एज ऑफ कार सबसे ओल्डर है, यानी हायर वैल्यू लोअर वैल्यू के साथ रिलेटेड होंगी, यहाँ पे हायर वैल्यू के साथ रिलेट होंगी, लोअर वैल्यू. अगर मैं इसको ग्राफ करूँ तो देखिए इसका ग्राफ कैसा आएगा. इसका ग्राफ ऐसा आएगा. ये हायर वैल्यूज हैं and higher values are related to the lower values. यहाँ से लगा है हायर वैल्यू मीन्स ये हाई, लेकिन अगर मैं इसका y देखूंगा, इसका y ये आ रहा है. तो अगर मैं x को कम करता हूँ I have here, तो y क्या आ जाएगा? y यहाँ आ जाएगा. और x को मजीद कम करता हूँ, यहाँ आ जाऊंगा, यहाँ आ जाएगा. और x को कम करता हूँ, यहाँ आ जाएगा, y यहाँ आ जाएगा. तो आप देखें y बढ़ रहा है. When I am decreasing x को मैं कम कर रहा हूँ, ये x एक्सिस है और ये प्राइस है y. ये y इसमें प्राइस है और ये इंक्रीज हो रही है. लेकिन if I am going to organize a graph of y and z, condition is z or y is here. So in both cases the y is on the y-axis. Here is y, and if we have a poor condition means the small values of z. Poor price means the small values of y. The small values of z gives us a small values of y, and so on. The meaning of this, the higher values of z gives us a higher value of price. The higher value of z means what? Higher condition, good condition. So if we are here at 10, means the condition is 10, then we'll give you the maximum price. सबसे अच्छी जाहिर है, आप अगर 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, चारों एक ही मॉडल की हैं और चारों गाड़ियों की आप बोली लगाते हैं, तो जाहिर है जिसकी कंडीशन अच्छी है उसकी आप अच्छे रेट लगाएंगे, जिसकी कंडीशन ख़राब है उसकी आप कम रेट लगाएंगे. तो ये एग्जांपल है किसकी? ये पॉजिटिव कोरिलेशन की एग्जांपल. ये पॉजिटिव कोरिलेशन की एग्जांपल है और ये नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ है. और इस ग्राफ का नाम क्या है? इस ग्राफ का नाम है स्कैटर प्लॉट.
Scatter plot. The scatter plot is a graph among the two variables, among the two quantitative variables. Yeah, graph of two quantitative variables. The graph of two quantitative variable is known as, or be careful whenever we are analyzing the correlation. So we have two or more quantitative variables. We are not analyzing any qualitative variable here. Okay, we have only the quantitative. That's why come no relation. We may introduce one more variable which does not have any relationship among the price. A price of car and condition of car, or age of car or condition of car, is also are related to each other. X and Z also have correlation, because if car age is high, there is a high probability that the condition is poor. Or when the age is low, there is a high probability that the condition is good. मिसाल के तौर पर न्यूअर कार्स, आपने कार अभी खरीदी है 2 साल हुए हैं, तो डेफिनेटली उस कार से कंडीशन बेहतर होगी जो 10 साल पुरानी है. तो इसलिए एज ऑफ कार और एक्स और जेड में भी हम देख सकते हैं ये रिलेशनशिप. और इस केस में अगर हम देख रहे हैं तो अगर मैं यहाँ एक्स बना दूं और यहाँ जेड बना दूं, तो क्योंकि ये तो मैंने वाई और जेड से बनाया है, ये मैंने वाई और एक्स से बनाया है, लेकिन मैं ये बना सकता हूँ एक्स और जेड से भी. तो एक्स और जेड से कैसा बनेगा? कम एज कंडीशन गुड होगी और ज़्यादा एज की कंडीशन पुअर होगी. तो ये ग्राफ पॉजिटिव रिलेशनशिप का बनेगा. लो एज कार हैव ए गुड कंडीशन एंड ओल्ड एज कार हैव अ बैड कंडीशन. दिस इज हाईली प्रोबेबल. लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक आदमी ने 10 साल गाड़ी रखी और बहुत अच्छी कंडीशन में उसकी गाड़ी आज भी. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. तो हम ये जनरलाइज बात करते हैं, कोई स्पेशलाइज नहीं करते. यानी ऐसा 1-2 केस में हो सकता है कि 10 साल पुरानी गाड़ी है लेकिन उसने बहुत एहतियात से इस्तेमाल की है, इसलिए उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है. लेकिन अब हम इसमें एक और वेरिएबल अगर ऐड करें जिसमें हम कहें कि भाई ये क्या है, नो रिलेशन. क्योंकि अभी तक हमने जो बात की है वो तो हमने पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप की बात की है. ये नो रिलेशनशिप क्या है देखिए. सपोज मैं इसमें एक वेरिएबल कोई और ऐड कर लेता हूँ. उस वेरिएबल का नाम मैं रख रहा हूँ एक्स वाई जेड. तो मैं रख चुका हूँ पी वेरिएबल है. P is a variable and that is basically indicating color of car, or basically we can say that the registration number. रजिस्ट्रेशन से भी आप कहेंगे रिलेशनशिप आ रही है. रिलेशन के अलावा अगर हम ये कहते हैं इसको, आप सोचिए कोई वेरिएबल ऐसा जिससे प्राइस पे फर्क नहीं पड़ता हो. ऐसा कोई वेरिएबल सोचिए कार का जिससे प्राइस पे कोई फर्क ना पड़ता हो. जी अलर्ट रहिए. देखें क्विज होगा, ऐसा ना हो आप लोग सोते रहें. नहीं, वाई में तो देखें रिलेशनशिप है. वाई की जेड से भी रिलेशनशिप है, वाई की एक्स से भी रिलेशनशिप है. तो वाई में तो रिलेशनशिप है. लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, एक नया वेरिएबल पी बनाइए जिससे प्राइस से फर्क ना पड़े. मॉडल ऑफ कार से पड़ता है. नए मॉडल की कार है ज़्यादा प्राइस होती है, पुराने मॉडल की कार है तो कम प्राइस होती है. तो मॉडल और एज तो एक जैसा काम करते हैं. ठीक है. अगर मैं मॉडल और एज का ग्राफ बनाऊंगा ना, देखिए कैसा बनेगा. अगर मैं पी को मॉडल कह देता हूँ तो ऐसा ग्राफ बनेगा. ये तो एग्जैक्ट ये बनेगा. ये एग्जैक्ट लाइन
एग्जैक्ट लाइन क्यों बनेगी? जाहिर है मॉडल और एज में क्या होगा, मॉडल बड़ा होगा तो एज ज्यादा होगी, मॉडल छोटा होगा, मॉडल का मतलब क्या है, 2020 का मॉडल होगा तो उसकी एज उल्टा कर लें, इसको एग्जैक्ट नेगेटिव भी बना दें, एग्जैक्ट सीधी लाइन बना दें। 2020 की कार है तो एज कम होगी, ठीक है, और 1992 की कार है तो एज ज्यादा होगी, एग्जैक्ट बराबर। लेकिन मैं तो एक ऐसा वेरिएबल लेना चाह रहा था जिसमें ये इसका इम्पैक्ट ही ना आए, मॉडल के बजाय इसको मैं कह लूँ एज ऑफ ड्राइवर। तो एज ऑफ ड्राइवर से प्राइस का क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी नहीं पड़ेगा। एज ड्राइवर बूढ़ा है तो भी प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ड्राइवर जो है वो, तो एज ऑफ ड्राइवर से प्राइस ऑफ कार का कोई रिलेशनशिप नहीं है, नो रिलेशनशिप, ठीक है ना। इसको अगर मैं ग्राफ करूंगा तो देखिए इसका ग्राफ कैसा आएगा। इसका ग्राफ में यहाँ बना रहा था, ये सर्कल में चला जाएगा। neither we are getting any upward line or we are getting any downward line. This graph will gives us a ना ये नजर आ रहा है ये upward है, ना ये नजर आ रहा है downward है। In this case we can say that age of driver P and price of car Y. This is Y. P and Y does not have any relationship. So it is an example of no relationship. ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि हम कहें कि जी ड्राइवर बूढ़ा था तो प्राइस ज़्यादा मिल गई इसकी, ये ड्राइवर यंग था तो इस कार की प्राइस जो है वो हमें अच्छी नहीं मिली। तो इसलिए प्राइस का ड्राइवर की एज से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको हम कहेंगे नो रिलेशनशिप, ठीक है। देखिए ये तो ग्राफ बहुत आसान है, रिदा रहमान ग्राफ है, आपने ये मैट्रिक इंटर में पढ़ा होगा। ग्राफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन के ग्राफ कैसे होते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शन के ग्राफ कैसे होते हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन की ग्राफ ये होता है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन के ग्राफ कैसे होते हैं, वो डाउनलोड होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शन को हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन और इसको हम कहते हैं नो रिलेशनशिप। ये जीरो बन पाएगा, ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड, पॉइंट ना ऊपर नजर आ रहा है ना नीचे नजर आ रहा है, डाउनवर्ड है ना अपवर्ड है, इसको कहते हैं जीरो रिलेशनशिप, जीरो कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, ये तीन तरह के होंगे। अब हम बात करते हैं कोरिलेशन की स्ट्रेंथ पर। स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन क्या है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस या नो में आंसर दीजिए। ग्राफ तो समझा दिए मैंने, यस। अच्छा, या अटेंडेंस के लिए भी आप लोग यस बोल दीजिए ताकि अटेंडेंस हो जाए। और अभी अटेंडेंस से बहुत फोकस हो रहा है, ये डायरेक्टर साहब की एक ईमेल भी आई थी कि जो लोग एब्सेंट जा रहे हैं उनकी सब लोग अटेंडेंस उनको सेंड करें। तो जितने भी स्टूडेंट मिसिंग हैं या कम अटेंड कर रहे हैं या नहीं अटेंड कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस जो है वो डायरेक्टर साहब को भेजी जा चुकी है। अच्छा, मैं अब एक लेक्चर खोल देता हूँ, प्रेजेंटेशन की तरफ वापस आता हूँ। हम इस पूरे टॉपिक को जो कवर कर रहे थे, यह हम कवर कहाँ से कर रहे थे?
ये हम कवर कर रहे थे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये टॉपिक है। और ये चैप्टर 14 है आपकी बुक का, तो बुक मैंने आपको दी हुई है, उसका चैप्टर 14। प्रेजेंटेशन नजर आ रही है सबको? ठीक है, चैप्टर 14 है, दैट इज बेसिकली द डिस्क्रिप्टिव मेजर्स इन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। डिस्क्रिप्टिव मेजर, रिग्रेशन, and what we are going to analyze in this chapter, we are going to analyze the relationship among the variables. Okay. And regression is what? Regression is the line. Regression is basically the linear regression. Linear regression is two commonly used method in examining the relationship of the two comparative variables. लीनियर रिलेशनशिप ये देखें, ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप। अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं तो इट इज नॉट लीनियर, और अगर मैं ऐसा ग्राफ बना दूं तो इट इज लीनियर। तो लीनियर नॉन लीनियर को समझिए। लीनियर क्या है? स्ट्रेट लाइन में अगर रिलेशनशिप है, और अगर कर्व में रिलेशनशिप है तो नॉन लीनियर। This is the definition of regression. Dependence of one variable over the other variable is called regression. यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर कितना इन्हिसार कर रहा है उसको रिग्रेशन कहते हैं। And the equation of such dependence is called regression equation. यानी अगर मैंने ये जो रिलेशनशिप बता रहा था, अगर इस रिलेशनशिप में या मॉडल था या एज नहीं थी, कंडीशन थी, यहाँ कंडीशन थी और यहाँ प्राइस थी। तो कंडीशन और प्राइस के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर मैं रिग्रेशन बनाऊंगा तो ये एक इक्वेशन बना रहा हूँ, ये इक्वेशन बना ली मैंने, इसको मैं कहूँगा रिग्रेशन इक्वेशन। The regression equation is nothing, is a straight line. All of you are familiar with the straight line in calculus. It is basically the straight line if the correlation is linear. If the correlation is non-linear, regression is not linear, it is a quadratic regression, linear regression. These are the topics that we are going to analyze under the heading of regression. अब the same example we have, the data से बात शुरू हो रही है। One variable we have age of car, another variable we have price of car. The price 85 means not 85, $8,500 in terms of 100. $70 price नहीं है, बल्कि 100 means $7,000. So it is $7,000. Because the prices are given in hundreds of dollars. A 5-year-old car, 4-year-old car, 7-year-old car. So 7-year-old car means age high, 7 high. तो आप देखें प्राइस सबसे कम आ रही है 48, एज सबसे ज्यादा आ रही है, प्राइस सबसे कम आ रही है, और जिसकी एज सबसे कम है वो ये है, इसकी प्राइस सबसे ज्यादा आ रही है। तो 2 साल प्राइस आ रही है 169, यानी यहाँ नुकता आ रहा है, और 7 साल पे प्राइस आ रही है 70, यहाँ नुकता आ रहा है। आप देखें ये डाउनवर्ड स्लोप आ रहा है, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है इस डेटा में। ये डेटा को डिस्क्राइब किया गया है, ये ग्राफ बना हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखिए स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ ऑफ, ये तो नेगेटिव तो समझ में आ रहा है। नेगेटिव कब आता है? नेगेटिव से आता है जब ये पॉइंट डाउनवर्ड आ रहे हों तो नेगेटिव आता है, जब पॉइंट्स अपवर्ड जा रहे हों
तो पॉजिटिव आता है। तो ये तो नेगेटिव ग्राफ है। एज बढ़ेगी तो कीमत गिर जाएगी, और एज कम होगी तो कीमत ज़्यादा मिलेगी। पुरानी गाड़ियों की कीमत कम होगी, नई गाड़ियों की कीमत ज़्यादा होगी। ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन की बात करते हैं। देखिए, ये पॉइंट जितने इस लाइन पे करीब होंगे, जितने पॉइंट्स क्लोज होंगे, पॉइंट दूर हो गए, ये देखें दूर हो गए, जितने पॉइंट दूर जाएंगे लाइन से, मैं कहूँगा स्ट्रेंथ इज वीक। Strength is weak when the points are scattered away from the line. Or strength is very high or strong strength if the points are close to each other. Points are very close to the line, we can say that the strong relationship, or if the points are above or away from the line, ये वीक रिलेशनशिप को शो करेगा। दो अब नई टर्म्स आ गई, देखिए, वीक रिलेशनशिप एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कब आएगी? when the points are close to each other, or we can say that if the points are very close to the line, strong correlation, strong negative, or if the points are away from the line, weak negative correlation, और यही पॉजिटिव उसमें आएगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप में आएगा। अब इन ग्राफ्स को देखिए, और इनके बारे में जो मैं कमेंट्स आपसे कहूँ जिस स्टूडेंट से भी, वो एक ग्राफ के बारे में कमेंट करे। ये मैं ग्राफ के नंबरिंग डाल रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको मैं कहूँगा 1 2 3 4 5 6। अब कमेंट्स करने हैं आपको, और कमेंट करने हैं फातिमा अब्बास 1 के बारे में। जी फातिमा, 1 के बारे में आप कमेंट करिए, और कमेंट आप मुझे अपना माइक ऑन करके, और जी फातिमा अब्बास, is the first one. We cannot say that it is yes, it is non-linear. It is non-linear, or we can call it as quadratic. क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ बन रहा है इसका। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप। और स्ट्रॉन्ग है या वीक है? इज दिस स्ट्रॉन्ग और वीक? जी, strong. It is strong, not it's weak. Okay. So, and what about number 2?
इखलास, नाज। सर नंबर 2 पॉजिटिव है। जी इखलास सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, लेकिन स्ट्रांगनेस तो बताइए। सर स्ट्रांग है क्योंकि वो लाइन से करीब है। हाँ, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं स्ट्रांग है, या हम कहें परफेक्ट है। तो बिल्कुल सर लाइन पे आ गए, परफेक्ट है। बिल्कुल लाइन पे आ रहा है, जी इसलिए हम उसको कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल लाइन पे, ये इससे भी ज्यादा है। ये इसको मैं अगर इसकी स्ट्रेंथ बताऊंगा ना तो 0.1 आएगी, +1 कोरिलेशन। और अगर इसके बताऊंगा तो 0.95 या 0.99। तो कोरिलेशन की जो रेंज होती है वो -1 to +1। ठीक है, नाउ इट इज नॉन लीनियर बट स्ट्रॉन्ग। व्हाट अबाउट द फोर्थ वन? फोर्थ वन का आंसर देना है निम्रा हैदर। जी निम्रा हैदर। So it is basically no correlation, because we cannot determine whether the points are upward or the points are downward. We cannot say anything about the upward or the downward of the point. Therefore, we can say that fourth is no correlation. And what about the 5? Strong negative. Strong negative, why? Because the points are closer to the line. Strong negative, sorry. It is strong negative because the line is downward and the points are very close to each other. So I think you have idea about these sort of relationship among the different variables. Now moving next, regression. This line is known as the regression line, and it is not very difficult for you to understand this line, because in your early classes you have studied a line y is equal mx plus c. मैंने mx बाद में लिखा है, c पर लिखा है, प्लस में आपको पता है कोई से भी पहले लिख दिया, कोई से भी बाद में लिखा है। Are you familiar with this line? Y is equal to mx plus c. Yes, y is equal to mx plus c is a equation of straight line. This model and this equation are same. You can analyze just the variation in the notation. This plus c, which is b naught. Instead of writing c, I am writing b naught. M. Instead of writing m, I am writing it as b1. So b naught and b1, c and m, and x, we have same x. But we did not have any error in this, but we have error here. तो अगर मैं error हटा दूं, ठीक है, अगर मैं error remove कर दूं, ये error, तो ये जो दो लाइनें हैं ये exact same है. Both are the equation of a straight line. तो अगर मैं ये दोनों हटा दूं, error हटा दूं, तो both lines are exactly same. अब इसको समझना है कि ये हमारे मॉडल में इसमें, और वो जो y इसमें है क्या, y इसमें है डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल की एग्जांपल मैं क्या दूं, वो जो अभी हमने कहा था प्राइस. प्राइस उस एग्जांपल में डिपेंडेंट वेरिएबल था, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस वेरिएबल था उस एग्जांपल में एज. Age was independent. Why age was independent and the price is dependent? Can anyone of you answer? Why I consider the price as dependent and age as independent? क्या मैं इसको रिवर्स कर दूं? प्राइस को इंडिपेंडेंट और एज को डिपेंडेंट नहीं, चेंज नहीं कर सकते. आयशा?
वी कैन नॉट चेंज बिकॉज एज हमारे कंट्रोल में नहीं है। एज तो टाइम गुजर रहा है, खुद आगे एज बढ़ रही है, ठीक है। एज हमारे कंट्रोल में नहीं है, एज तो टाइम के साथ साथ एज खुद ही बढ़ रही है। तो हम एज को जो है वो डिपेंडेंट इसमें नहीं कह सकते। प्राइस एज पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि जो एज खुद ब खुद ज्यादा हो गई, प्राइस खुद ब खुद कम हो गई। तो प्राइस बेसिकली डिपेंड कर रही है एज पर। तो एज इंडिपेंडेंट है, प्राइस डिपेंडेंट है। तो ये इसमें ये समझना भी जरूरी है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डीवी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, आईवी। तो आईवी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें आईवी है एक्स और इसमें डीवी है वाई। हमेशा डिपेंडेंट को हम लेफ्ट पे रखते हैं और इंडिपेंडेंट को हम राइट पे रखते हैं, और यही इसमें एरर है। एरर से क्या मतलब है यहाँ, एरर से मतलब ये है, देखिए ये एरर है, ये एक गाड़ी थी 5 साल पुरानी, ठीक है, और इसकी प्राइस आ रही थी $5,000, 50 ये प्राइस आ रही थी। अच्छा, ये जो प्राइस थी, यही 5 साल पुरानी गाड़ी जब निम्रा हैदर ने बेची तो इनको 5,000 प्राइस मिली, लेकिन जब यही महविश राव ने बेची तो इनको 49 मिली, और जब ये माज अली ने बेची तो इनको 52 मिली। यहाँ रही, तो अब ये 3 अलग अलग प्राइस आ गई, तीनों की गाड़ियाँ 5 साल पुरानी थी। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है ना, ये एरर में जा सकता है। अब ये अलग बात है, हो सकता है इनकी गाड़ी ज़्यादा है, इनकी इसकी कंडीशन अच्छी हो, इनकी कम है, इनकी इसकी कंडीशन खराब हो, लेकिन ये जो वेरिएशन आ रहा है ना, दैट इज कॉल्ड रैंडमनेस। तो हम इसको एरर में डालते हैं। एक ही प्राइस, एक ही मॉडल की कार की हमें मुख्तलिफ प्राइसेस क्यों मिल रही है। अगर मैं ये कहूँ कि ये 3 स्टूडेंट ने जो कार बेची हैं, ये तीनों की तीनों कार जो हैं वो बिल्कुल सेम कंडीशन की थी, ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन। तीनों कार 5 साल पुरानी थी, पहली बात, और तीनों कार की कंडीशन बिल्कुल एक जैसी थी। अब ये 3 स्टूडेंट ने अगर गाड़ियाँ बेची हैं तो क्या आप सेम प्राइस मिलेगी, तीनों को क्या सेम प्राइस मिलेगी? अब बताएं, यस नो में आंसर दें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 गाड़ियाँ हैं, 3 स्टूडेंट्स के पास हैं, तीनों गाड़ियाँ 5 साल पुरानी हैं, तीनों की कंडीशन बिल्कुल एक जैसी है। अब मैं इन गाड़ियों को तीनों सेल करने जाते हैं, तो क्या मार्केट में तीनों को एक प्राइस मिलेगी या अलग अलग मिलेगी? यस नो में आंसर दें। कोई भी नहीं बोल रहा, क्या आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ, सेम प्राइस नहीं मिलेगी बेटा, कैसे मिलेगी, ये डिफरेंट प्राइस मिलेगी। तो ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसकी वजह से, ठीक है, रैंडमनेस की वजह से, ये रैंडमनेस है। अच्छा, अब इसमें बीटा नॉट और बीटा 1 क्या है, इसको समझना है। ये y इंटरसेप्ट है, ये स्लोप ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c में क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c में m स्लोप होता है और c y इंटरसेप्ट होता है। तो यहाँ बीटा नॉट जो है ये y इंटरसेप्ट है और ये इसका स्लोप, स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट, ये स्लोप। ठीक है, मॉडल समझ में आ गया सबको? यहाँ से आगे चलते हैं। ये प्रेडिक्टेड मॉडल है, प्रेडिक्टेड मॉडल में से एरर होता है। प्रेडिक्टेड मॉडल क्या होता है, एक होता है ऑब्जर्व्ड मॉडल, एक होता है प्रेडिक्टेड मॉडल या ऑब्जर्व्ड मॉडल। और ये नेक्स्ट स्लाइड पे आपका प्रेडिक्टेड मॉडल है, प्रेडिक्टेड, यानी ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, इसमें एरर नहीं होता। बस फर्क ये है, ऑब्जर्व्ड मॉडल में एरर होता है, प्रेडिक्टेड मॉडल में एरर नहीं होता। लेकिन ई हटा दिया तो और फर्क नहीं है।
यहाँ भी एरर नजर आ रहा है। ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, इसके सामने ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ये एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, इसके सामने ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये दिस इज एरर, ये डिफरेंस। तो y और y बार या y कैप में जो डिफरेंस आ रहा है इसे हम एरर कहते हैं। तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्राइस एंड प्रेडिक्टेड प्राइस। मिसाल के तौर पर मैंने कहा है, मैं ये सोच रहा था मेरी 10 साल पुरानी गाड़ी थी, ये सपोज 8 लाख में चली जाएगी, ये तो मैंने सोचा था ना, तो ये तो मेरी प्रेडिक्टेड थी, 8 लाख क्या था, 8 लाख प्रेडिक्टेड थी। जब मैं बेचने गया तो 7.5 में थे। तो ये क्या है, एक्चुअल। एक्चुअल कितने में गई, y, ये 7.5 में गई, लेकिन मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था, 8 लाख। तो ये जो डिफरेंस आया ये एरर है। तो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का जो डिफरेंस है दैट इज एरर। तो एरर को समझना जरूरी है इसमें। अच्छा, देयर आर सम assumptions of regression model. What that assumptions are: the relationship between x and y is straight, linear. Straight line का मतलब linear होना चाहिए. The values of independent variable x are assumed fixed, not random. ठीक है, independent variable का मतलब है fixed variable, और dependent variable y. Same variance नहीं, same variance होना चाहिए इसका, different values का. और error are what? Error are the random factor, and error have a zero mean and constant variance sigma square. ये error के assumption, ये error को यूँ लिखते हैं, error are normal, n stand for the normal, mean zero, variance sigma square. ये 3 चीजें error के बारे में समझिए. Error are what? इसको लिखते देखिए कैसे हैं, इसको लिखते हैं error, ये निशान है follow, error follow normal distribution with mean zero and variance sigma square. This is the assumption of error. Achha, now we are going to first calculate the correlation of this data set. So how we have to calculate the correlation of this data set? तो मैं ये Excel में करा रहा हूँ. Correlation in Microsoft Excel. Here. Insert an Excel file. X, the age, Y, price. These are the 2 elements. So what are the ages and what are the prices? You can see both things here. Age 5 year, age 4 year, age 6 year, age 5 year.
6 year, 7 year, 85, 100, 10, 300, 70, 82, 89, 98, 66, 95, 169, 70 and 48. ये डेटा आपने ले लिया, इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, अब हमें क्या निकालना था? फंक्शन से भी निकाल सकते हैं कोरिलेशन, और कोरिलेशन फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो मैं फार्मूले से निकाल रहा हूँ। कोरिलेशन के लिए हमें कुछ कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। क्या कॉलम बनाने पड़ेंगे? मैं तो मैं निकाल रहा हूँ मीन। मीन आप सबको पता है कैसे निकालते हैं? एक्स का और वाई का टोटल निकाल लें, टोटल आ गए, और यहाँ मीन निकाल लें, इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 11, 1, 2, 3, 4, 975 divided by 11. अच्छा, in 1 decimal, you can calculate in 1 decimal. For variance of x, we need a column x minus mean. And x minus mean square. Similarly, we need a column y minus mean and y minus mean square. Everyone knows how we can calculate x minus mean. This is x, this is x, this is x, this is x. So we have to put a formula here, and what that formula will be: x minus, is this correct? A2 minus A14. Those who assume it is correct, say yes in chat. Okay. Is the formula correct? Formula is what? A2 minus A14. Navish, yes. और भी लोग बताएं. मरियम, yes. रोहान, no. ठीक है. अलिश भाई, yes. Class, no. रोहान, आप बताएं why you are saying it is incorrect. Yes, डॉलर साइन आएगा. ठीक है. डॉलर साइन किस में आएगा? A14 में आएगा, A2 में आएगा. A14 के साथ डॉलर साइन आएगा, और डॉलर साइन लगाने का तरीका ही बताया था तुम लोगों को. तो ये था ये फंक्शन F4. देखो, जैसे मैंने फंक्शन के साथ F4 की प्रेस की तो डॉलर साइन खुद ही आ गए. तो डॉलर पहले था A14, अब बन गया $A $14. इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल एड्रेस. और ये A2 में डॉलर साइन नहीं लगा हुआ, इसको बोलते हैं रिलेटिव सेल एड्रेस. अभी मैं फर्क बताता हूँ एब्सोल्यूट और रिलेटिव का. ये आ गए. अब देखें, अब मैं इसको जब ड्रैग करूंगा तो फार्मूले में एक चीज चेंज होगी, एक नहीं होगी. आप देखें, A2 था और A14 था. अब यहाँ क्या हुआ? A3 हो गया और A14. यहाँ क्या हो गया? A4 हो गया, A14. तो जो A14 है ना,
ये मैं नीचे आ रहा हूँ तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ए चेंज हो रहा है, A4 A5 A6 ये चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है ए को तो चेंज करना है, मीन को चेंज नहीं करना, मीन तो फिक्स है। इसलिए A14 के साथ हमने डॉलर लगाया था कि जब मैं इसको नीचे कॉपी करूं तो ये, अब मैं देखें ये डॉलर हटा दूं, अगर ये आपके सामने हटा रहा हूँ फिर देखिएगा क्या होगा। डॉलर हटा दिया, डॉलर हटा दिया, और अब मैं इसको पहली वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी वैल्यू भी है -1.27। अब ये देखिएगा चेंज हो गई, चेंज हो गई, ये चेंज हो गई, इसलिए चेंज हो गई, ये सब चेंज हो गई। A24 में क्या होगा, तो आप देखें तो मोर और लेस ये वही आंसर आ रहे हैं। 5 है, ये भी 5, ये 6 है, क्यों चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ सब में 0 है, यहाँ कुछ नहीं लिखना हुआ ना, वो इसमें से माइनस कर रहा है तो वो 0, इसको वापस कर देते हैं, कंट्रोल Z किया, वापस डॉलर आ गई। इसी तरह यही काम हम कर रहे हैं स्क्वायर करके, इज इक्वल टू। अच्छा, माय वन क्वेश्चन इज, if I compute the total of this column, तो tell me the total of this column कितना आएगा, टोटल कितना आएगा? हाँ, टोटल 0 आएगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी बताई थी कि x माइनस मीन और टोटल हमेशा 0 होता है, इसी तरह y माइनस मीन और टोटल भी 0 आएगा, वो टोटल 0 आएगा। इसीलिए तो स्क्वायर कर रहे हैं, ये स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका ये तो बेकार हो जाएगा, इसका टोटल 0 आ जाएगा, इसका टोटल भी 0 आ जाएगा, तो ये तो काम पे ही नहीं रहेंगे, तो स्क्वायर कर रहे हैं, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं फार्मूले में ये वैल्यू डालता हूँ, इसका तो मैं यहाँ स्क्वायर करूँगा, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। स्क्वायर कैसे करते हैं, एरो लगाते हैं, इसके बाद 2 पावर कर स्क्वायर आएगा। और ये याद रखें, ये A12 तक करना है, A13 में नहीं करना है, क्योंकि A13 में तो टोटल्स हैं। इसको मैं यहाँ से अगर ड्रैग करूँगा तो ये इनके भी टोटल आ रहे हैं, लेकिन 0 आ रहा है टोटल, इसका टोटल 0 आ रहा है, तो 0 नहीं आ रहा, 2.6 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2.6 आ रहा है, तो 2.6 तो आ रहा है, लेकिन ये असल में 2.6 into 10 की पावर -15 है, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो ये 0 के बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली 0, इतना छोटा आ रहा है कि इज अज्यूम्ड एज 0। नाउ वी आर कंप्यूटिंग y minus mean. Y minus mean, y is where? Y is here. Minus mean is where? Y का mean B30, ये तो देखें B2 minus B30, लेकिन इससे भी फिर मुझे B13 को क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, वो फंक्शन F4 को, जैसे फंक्शन F4 किया तो ये भी एब्सोल्यूट होगा। अब इसको कॉपी पेस्ट करना है, इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद इसका टोटल देखें, गलत हो गया, क्या गलती हो गई, E2 से E12, E2 minus E3 minus, यहाँ गलती हो गई, ये 11 minus E2। सर आपने मीन की जगह टोटल पुट करा दिया। अच्छा, सही,
मीन तो नीचे आएगा ना, ये आएगा, सही है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो ये 14 होना चाहिए, ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। अब देखें 0 देखिए एग्जैक्ट 0, वाई माइनस मीन का टोटल 0, इसीलिए स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर क्या किसका करना है, इसका करना है। स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसका भी मैं टोटल निकाल लूँ। ये टोटल और ये टोटल देखिए क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा समीशन एक्स माइनस मीन स्क्वायर का टोटल आ रहा है, और समीशन वाई अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 11 से, और इसको भी डिवाइड कर दूं 11 से, क्या बन जाएगा? अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वेरिएंस, ये टोटल है 188 है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बनेगा, वेरिएंस बनेगा। वेरिएंस एक्स का बनेगा, ये इसको नहीं, और ये बनेगा फिर वेरिएंस वाई का, इसको नहीं बनेगा। और ये, लेकिन ये फिर फार्मूले में इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करूंगा n से, डिवाइडेड बाय n, और इसको भी मैं डिवाइड करूंगा n से। तो अगर मैं ये टोटल को n से डिवाइड कर दूंगा तो वेरिएंस आ जाएंगे। तो वेरिएंस आने के लिए देखिए मैं आसान से काम कर रहा हूँ, नीचे इसी के यही वेरिएंस निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसके वेरिएंस आ जाएंगे यहाँ, इसको डिवाइड कर रहा हूँ 11 से, दिस डिवाइडेड बाय 11। इसी तरह से इसको भी डिवाइड कर रहा हूँ 11 से। तो ये आ गया आपके पास वेरिएंस x 1.8, और ये आ गया वेरिएंस y 882। यहाँ तक तो देखें आप सबको समझ में आ रहा है। अब मैं इसमें एक नई चीज लगा रहा हूँ, जब पहली बार आप देखेंगे, वो ये है x माइनस मीन y माइनस मीन, इनका प्रोडक्ट, x माइनस मीन y माइनस मीन का प्रोडक्ट, x माइनस मीन कहाँ है, वो ये है, y माइनस मीन कहाँ है, ये, इनका प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। तो इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय, एक वैल्यू आई है, इसी तरह बाकी वैल्यूज आ गई, और इसका टोटल। ये क्या चीज आई है अब नई, ये आई है ना, ये x माइनस मीन है, ना ये y माइनस मीन है, ये है x माइनस मीन y माइनस मीन का प्रोडक्ट, ये बीच में डॉट लगा दिया, ये प्रोडक्ट और फिर इसका टोटल।
और इसके टोटल को अगर मैं डिवाइड कर दूं 11 से, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वेरिएंस एक्स, इसको कहते हैं कोवेरिएंस एक्स। कोवेरिएंस अब नहीं करना है आपके लिए, लेकिन ये कोवेरिएंस क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 11 से, डिवाइडेड बाई 11, तो आंसर आ रहा है -1575 -1.59 0.6। दिस इज कोवेरिएंस। तो वेरिएंस एंड कोवेरिएंस, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? लेवल से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये फार्मूले में आता है ना समीशन। मीन कैसे निकालते हो? समीशन एक्स टोटल करते हो, फिर डिवाइडेड बाय एन करते हो। तो वेरिएंस में भी तो डिवाइड बाय एन होता है, जैसे मीन में डिवाइड बाय एन होता है, वेरिएंस में भी डिवाइड बाय एन होता है। इसलिए 11 से सबको डिवाइड करेंगे तो वेरिएंस आएंगे, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हम एक और चीज करने आगे जा रहे हैं, वो है कोरिलेशन। 17 कहाँ है? -17 कहाँ है? -17 तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, आगे हम क्या करने जा रहे हैं? आगे हम करने जा रहे हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन का फार्मूला बहुत सिंपल है। कोरिलेशन का फार्मूला ये है, समेशन, बल्कि आसान कर दो, ये आसान कर दो। इसको हम निकालेंगे कोवेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस एक्स ये है। This is the formula of correlation. This is the formula of correlation. तो वेरिएंस एक्स वाई, यानी बस से मैं ये ऊपर रखूं, इन दोनों से डिवाइड कर दूं नीचे रख के और रूट ले लूं, वो आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ दिखाऊं आपको, -1575.6 डिवाइडेड बाय √1.8 मल्टीप्लाई बाय 882। इसको अगर मैं हल कर लूँ कोरिलेशन, अब मैं करके दिखाता हूँ आपको, फार्मूला दिखाता हूँ। यहाँ मैं निकाल रहा हूँ, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय अंडर रूट। कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट SQRT ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय सही, गलत आ रहा है आंसर। D14 और F14 डिविड में आ गए, और ये G14 आ गया।
से कितना आ रहा है 39 गलत आ रहा है। Variance of y under root, variance of x under root, variance xy। देखिए मैं वहाँ से फार्मूले से निकाल के दिखाता हूँ। एक्सेल के फार्मूले में है CORREL, ये तो डायरेक्ट है, इसमें तो मैंने भी कैलकुलेशन की थी ना, ये डायरेक्ट निकाल देगा। इससे पहले मुझे y बताना है, y कहाँ है, यहाँ पर, और मुझे x बताना है, कॉमा लगा के। ये आंसर आ रहा है, ये सही आंसर है, ये गलत आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है इसको चेक करना पड़ेगा। ये इतना आंसर आना चाहिए 0.9, ये करेक्ट आंसर है कोरिलेशन। और से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस में आ रहा है 0.9 स्ट्रॉन्ग है। इसको चेक करते हैं, देखिए हम यहाँ क्या गलती है। x माइनस मीन, x माइनस मीन सही है, सही है। ये गलती है, सही है, अच्छा ये हम स्क्वायर कर दें इसको, ये सही है। ये क्या आ रहा है टोटल, यहाँ तक सही है, ये भी देख लेते हैं। सही है, इसका स्क्वायर स्क्वायर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट सही है, ये प्रोडक्ट सही है, सब सही है। इस फार्मूले को चेक करें, वेरिएंस y बताए तो सही है। वेरिएंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई। Anyone have found any error in the calculation? क्योंकि ये आंसर आना चाहिए, ये सही आंसर है, ये 39 गलत आ रहा है। चलिए ये भी करके देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ
पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 39 हो रहा है। यहाँ कहीं एरर रहेगा, कहीं कैलकुलेशन में कहीं एरर आ रहा है। ये गलती है, ये जो कॉलम बनाया ना मैंने, ये गलत बनाया। क्या किया, E2 रखना चाहिए था, मैंने F2 रख दिया। ये दिस इज द एरर, इसको करेक्ट करना है। यहीं से मैं सारी चीज़ें चेंज कर देता हूँ। ये फार्मूला पहला वाला चेंज होगा, ये F2 नहीं है, ये है F2 हटा रहा हूँ, इसकी जगह E2 लगा रहा हूँ। ये इसको आप कॉपी करें पूरा, ये सब चेंज होगा। देखिए सही होगा। तो इसको भी चेंज करते हैं तो ठीक होगा। रिलेशन पहले एरे 1, चाहे एरे 1 में किसी को भी ले सकते हैं, एक्स को या वाई को, कॉमा लगाएं तो एरे 2, आंसर सही। क्लियर हो गया कितना? देखिए छोटे से एरर की वजह से entire thing becomes wrong. So if anyone have any confusion or any problem in this calculation, you can ask. इसको मैं सेव कर लूँ ताकि ये वहाँ वन नोट में चला जाए, वन नोट में चला जाएगा आर क्यू आगे। और आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बताया था आर से रिप्रेजेंट करते हैं कोरिलेशन से। कोरिलेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव कोरिलेशन, और 0.9 आ रही है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि रेंज ऑफ कोरिलेशन जो होती है वो होती है रेंज ऑफ कोरिलेशन ये एक सेशन मैं रेंज ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट को बता रहा हूँ। रेंज ऑफ रेंज ऑफ कोरिलेशन -1 +1 के इन बिटवीन होती है। -1 अगर है तो माइनस परफेक्ट नेगेटिव, +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, और 0 है तो कोरिलेशन। और we can say that independent variable. कोरिलेशन और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और r इज इक्वल टू +1 परफेक्ट पॉजिटिव, r इज इक्वल टू -1 परफेक्ट नेगेटिव, और हमारा कितना आ रहा था 0.9, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। और हमारा नेगेटिव आ रहा था वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। अब रह गया रिग्रेशन। रिग्रेशन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब आज आपको मैंने कुछ क्विज के टॉपिक दिए थे, तो हम क्विज कर लेते हैं, और अगर आप कहते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर कर लें तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ D14 स्क्वायर रूट ऑफ F14 करके दिखा दें।
सभी डबल क्लिक करें, क्या सभी और इसके एनिमेशन खत्म कर देते हैं। सवाल क्या था? सवाल था स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर, ये देखेंगे इक्वल लगाएंगे, फार्मूला शुरू होता है SQRT, लिखेंगे स्क्वायर रूट के लिए अंडर रूट, इसका अंडर रूट लेना है, अंडर रूट लेना है D14, यहाँ क्लिक कर दो। अच्छा इसको यूँ भी कर सकते हैं इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। SQRT D14 multiply by square root of, देखिए आंसर सेम, क्या वजह है आंसर सेम आने की? इसकी वजह ये है स्क्वायर रूट ऑफ कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ a into स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा एक आंसर में आपने a प्लस बी अगर लिखा हुआ हो तो मैं क्या इसको a प्लस बी लिख सकता हूँ, या जो लोग समझते हैं हाँ लिख सकता हूँ, यस कर दें, जो समझते हैं नहीं लिख सकता वो नहीं कर, जी टाइप करें यस नो में। कोई भी नहीं बोल रहा। Square root of a plus b can be written as square root of a plus square root of b. Is this true or false? जो लोग समझते हैं ट्रू वो टी लिखते हैं, जो लोग समझते हैं फॉल्स वो एफ लिखते हैं, ठीक है? फॉल्स। हाँ जल्दी, बाकी सब सो रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ तक तो अब आपको ही समझ में आ गया। अब मुझे क्विज करना है, अब क्विज के लिए मैं एक खास तरीके का यूज़ कर रहा हूँ। क्विज का एक तरीका तो ये था कि मैं एक पेपर बनाता और दे देता। अच्छा पेपर बना के देने में मसला ये आता है कि प्लेजरिज्म आती है कि आप लोग आपस में बैठ के शेयर कर लेते हैं क्वेश्चंस को, तो मैं उस पैटर्न पे तो क्विज नहीं ले रहा। ले रहा हूँ, ठीक है बेटा, अब ये सब सही समझ में आ गया है। इसकी वजह ये प्लस में हम स्प्लिट नहीं कर सकते, ये फॉल्स है, ये गलत है, ये सही है। अच्छा देखिए अब मैं क्विज कैसे ले रहा हूँ, तो मुझे ज़रा याद दिला दीजिएगा। मैं कल संडे को रोहन से कहिएगा मुझे मैसेज कर दो, मैं रिकॉर्डिंग सारी की सारी अपलोड कर दूँ। आप लोग देखते तो बहुत कम है, मैंने देखा रिकॉर्डिंग में व्यूज़ ही नहीं है इसमें। 32 स्टूडेंट इस वक्त यहाँ पर हैं, व्यूज़ चैनल स्टूडेंट के आ रहे होते हैं, 2-4 स्टूडेंट के व्यूज़ आ रहे होते हैं, बाकी व्यूज़ भी नहीं आ रहे होते उसमें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं आवाज़ सेट करता हूँ, देखें आवाज़ की कम आ रही है। अब देखें आवाज़ कैसी आ रही है, इज दिस फाइन? आवाज़ बढ़ गई, ठीक है। वो मैंने माइक्रोफोन सही चूज़ नहीं किया हुआ था।
जिसकी वजह से आवाज़ जो है मेरी कम आ रही थी। अब मैं माइक्रोफोन सही चूज़ कर लिया है, लेकिन ये कि अब टाइम कम है, मैं लेकिन आपको कुछ सवालात दिखा रहा हूँ, उसके आंसर आपको देने होंगे। सर एक्सक्यूज मी। जी जी बोलिए। सर मुझे कुछ कहना था। हाँ बोलिए। सर प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, जब आपको क्विज लेना होता है ना सर, आप एटलीस्ट हमें 1 या 2 दिन पहले बता दिया करें, क्योंकि सर एक तो रमज़ान है, इतना मैंने बिजी तो बेटा शेड्यूल है। 1 हफ्ते पहले बताया था। मैं तो जब सर लास्ट हमें लेक्चर खत्म हुआ था उस वक्त बताया था कि ये मैं क्विज लूँगा आज, और वो लेना था मुझे। बेसिकली तो क्लास मेरी ये थर्सडे को थी, लेकिन मैंने सर थर्सडे एक तो को तब भी हो गया था, कुछ क्विज आपने लिया नहीं नहीं था। नहीं, अभी तक तो क्विज हुआ नहीं है ना। क्विज अभी तक तो हुआ ही नहीं है आपका। हाँ, अब अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है अगली क्लास में ले लूँ, तो ठीक है मैं अगली सर क्लास में ले प्लीज़ लूँ। ले लें, क्योंकि ना रिमाइंडर नहीं था, हमें बिल्कुल भी याद नहीं था। बहरहाल और चलिए, अब फिर आप रेडी शेड्यूल इतना होकर बिजी बैठिएगा। है। रेडी होकर प्लीज़ सर। बैठिएगा, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करूँगा, लेकिन अभी मैं कुछ डेमो दिखा रहा हूँ आपको, इसको यस सर, समझिए प्लीज़ इसलिए। सर। थैंक यू सो मच सर। देखिए, ये होता है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड में आपको इस वक्त 60 कार्ड्स पीछे छुपे हुए हैं। एक नज़र आ रहा है, 59 पीछे छुपे हुए हैं। वन कार्ड यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। ओके, अच्छा, फुल स्क्रीन पे आ गया ये। फुल स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा? ये देखें, हर कार्ड पे मैं क्लिक करूंगा ना तो इसके 2 वर्जन आएंगे। ये पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, इसको रीड करें क्वेश्चन को, और
इसका आंसर दें चैट बॉक्स में। जिसको भी आंसर आता है वो इसका आंसर दे दे। जी किसी को नजर नहीं आ रहा? जी राफे बताएं। अनरेज कर दें अपना, अपने आप को अनम्यूट कर दें जिसने आंसर देना है। मैंने अलाउ कर दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दे दें, फिर वरना मैं पूछूंगा आपसे। देखिए इसमें इसका आंसर तो हर सारी हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स? स्टेटिस्टिक्स में तो सारे ही आता है ये कह रहा है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है, ग्राफ बनाना भी स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है, इंटरप्रिटेशन एंड डिसीजन। अच्छा मैं इसमें एक सवाल कर लेता हूँ, चलें। ऑल पार्ट अप्लाई सही है। इसमें से ये बताएं कि ये जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, ग्राफ, ये अलग हो गया एक पार्ट, और डिसीजन इंटरप्रिटेशन ये दो पार्ट हो गए। ये दो हिस्से कर दिए मैंने इसके। इसका आंसर तो सारे ही हैं कि सारे जो है वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। इसका नाम बताना है क्या है, इसका नाम बताना है क्या है। जी चैट बॉक्स में बताइए पहले वाले का नाम क्या है, दूसरे का डिफरेंशियल। नहीं रोहान सही टर्म इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, पहले वाले का बता रहे हो नाम। डिस्क्रिप्टिव सही है, हाँ सही है, सही है। और दूसरे वाले का इन्फरेंशियल, राइट। इट्स गुड रेहान। it is descriptive statistics, it is inferential statistics. So descriptive and inferential, these are the two categories chapter 1 में पढ़ाया था आपको। So that is basically the part of statistics. अब मैं slide number 2 ओपन कर रहा हूँ। इसमें इंटरप्रिटेशन कह रहा है जस्ट फॉर द लॉजिकल कंसेप्ट। कोई टॉपिक इससे, कोई एक वर्ड बताओ जिससे ये टॉपिक रिलेट कर रहा है। किसी को नहीं समझ में आ रहा? सही है, कोरिलेशन से रिलेट कर रहा है, और ये कोरिलेशन आंसर दिया है। पहला आंसर किसने दिया है? ये आयशा इमरान ने दिया है, आयशा ईमान। तो ये कोरिलेशन है इसमें या नहीं है? देखो है तो रिलेशन से ही है, कोरिलेशन से। दो वेरिएबल हैं इसमें, अभी आज जो पढ़ा है तुमने। एक वेरिएबल इसमें है तुम्हारा ये रहा, सेल ऑफ आइसक्रीम या कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम, ये कंजम्पशन ऑफ आइसक्रीम एक वेरिएबल। और ड्रोन किसी सिटी पे होना,
हमला होना ड्रोन का। दो वेरिएबल हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बना लिया एक कॉलम x, एक कॉलम y। इसको मैंने कहा ये x है, इसको मैंने कहा ये y है। अब ये मैंने कहा आइसक्रीम की सेल 5,000 आइसक्रीम सेल हो गई। ड्रोन कितने पड़े? कोई ड्रोन नहीं पड़ा। 8,000 आइसक्रीम सेल हो गई। ड्रोन कितने पड़े? 3 ड्रोन के हमले हो गए। 20,000 आइसक्रीम सेल हो गई, कोई ड्रोन का हमला नहीं हुआ। 50,000 आइसक्रीम सेल हो गई, 8 हमले हो गए। ये ऐसी डमी डेटा डाल दिया मैंने यहाँ पे। आप देखें, इंटरप्रिटेशन करें। कोई रिलेशनशिप नजर आ रही है? डूबने के लिए यूज नहीं हो रही। ड्रोनिंग फॉर अ सिटी। नो रिलेशनशिप। नो रिलेशनशिप, इट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल। ये वेरिएबल में कोई कोरिलेशन जीरो। ये आज ही पढ़ा आपने ये। अच्छा, इसके आंसर भी दिए हुए हैं यहाँ पे। ये मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है। इस वेबसाइट पे जब तुम इस पर क्लिक करोगे ये आंसर आएगा। यस, देयर इज अ थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हियर, द समर। मोर पीपल ईट आइसक्रीम इन द समर एंड मोर पीपल स्विम इन द समर। तो ये ड्रोनिंग वो वाला नहीं था, सही है। तुम जो कह रहे थे, अभी किसी ने कहा था ये डूबने के लिए टर्म इस्तेमाल हुई है। तो ड्रोनिंग यहाँ पे ये एक थर्ड वेरिएबल आ रहा है इसके अंदर। लेकिन अगर मैं ये कोरिलेशन देखूं, एक्स वाई जी, एक को मैं कहता हूँ टेम्परेचर, एक को मैं कहता हूँ आइसक्रीम सेल, और एक को मैं कहता हूँ ड्रोनिंग। तो अब मुझे ये नज़र आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्विमिंग का रेट बढ़ेगा, तो ड्रोनिंग का रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये एक्स का वाई से कोरिलेशन भी पॉजिटिव है, एक्स का जेड से कोरिलेशन भी पॉजिटिव है। तो ये तो है, लेकिन इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना, इसका डायरेक्ट रिलेशन नज़र नहीं आ रहा। डायरेक्ट रिलेशन क्या है? डायरेक्ट रिलेशन ये है कि मैं कहूँ टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं, आइसक्रीम की सेल का डायरेक्ट रिलेशन कोई ड्रोनिंग से नहीं है। ठीक है, आइसक्रीम की सेल का डायरेक्ट रिलेशन कोई ड्रोनिंग से नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स। ये तो आप मुझे डिस्कशन बेस्ड कर दें अगर तो ज़्यादा अच्छा होगा। आंसर दिया है, हरीम ने दिया है। इट्स हेल्प टू मेक द डेटा प्रिसाइज, कॉन्साइज एंड मीनिंगफुल, टू मेक डिसीजंस। ठीक है ना, टू मेक डिसीजन। ये दिखा रहा हूँ आंसर, खाली छोड़ा हुआ है, आंसर दिया हुआ नहीं। तो इसका आंसर इसलिए नहीं दिया हुआ तो वो खुद ही करना है इसको। ठीक है, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा वी हैव टू टेक डिसीजंस। अच्छा देखिए, ये मैं छोड़ के चला जाता हूँ अब यहाँ पे, टाइम तो हो रहा है। ये कहीं पे भी आप क्विजलेट गूगल पे और इस पर सिलेक्ट कर लें फ्लैश कार्ड्स,
स्टैटिस्टिक्स फ्लैश कार्ड्स। बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। अच्छा, ये तो चैप्टर वाइज दिखा रहा है, देखें बुक के चैप्टर्स होंगे, किसी बुक से लिया हुआ होंगे, चैप्टर 1 2 3 इस तरह चलना शुरू हो जाएगा। तो चैप्टर 1 के फ्लैश कार्ड्स आ जाएंगे, फिर चैप्टर 2 के आ जाएंगे। आप ढूंढ लें फ्लैश कार्ड फार्मूलाज के, देखें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लैश कार्ड फार्मूलाज के, मैं फार्मूलाज के फ्लैश कार्ड दिखा रहा हूँ। पॉपुलेशन मीन का फार्मूला 91 क्वेश्चंस हैं, देखिए ठीक है ना। पॉपुलेशन मीन का फार्मूला सबको आना चाहिए। म्यू इज इक्वल समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, अब इसका आंसर इनसे देखते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ समेशन एक्स डिवाइडेड बाय ये फार्मूला। हर एक के फार्मूले का फ्लैश कार्ड आएगा। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अंडर रूट समेशन एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 या एन। एन क्योंकि पॉपुलेशन का है तो एन, और सैंपल का होता तो एन माइनस 1। ठीक है, तो अब मैं इसका आंसर दिखाता हूँ आपको, देखें है सही। स्क्वायर रूट अभी एक्सेल में किया था, SQRT समीशन, ये पूरा भी एक्सेल में किया था, देखें सही है। अच्छा, आप अगले फार्मूले पे आते हैं। पॉपुलेशन वेरिएंस बस अंडर रूट हटा दें, यही आएगा, कोई चेंज ही नहीं आएगी। और आगे चलें, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ये भी आपने पढ़ा ही नहीं है। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन स्टैंडर्डाइज स्कोर जेड स्कोर, ये सबने पढ़ा है। जेड स्कोर क्या होता है? जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जेड स्कोर का फार्मूला है। तो ये सबने पढ़ा था, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया। तो ये जो स्कोर कार्ड हैं, जब मैं कह रहा हूँ क्विज करें, तो क्विज के लिए आप कहीं से भी मीन के वेरिएंस के ये फ्लैश कार्ड्स खोल लें, और इन फ्लैश कार्ड्स को आप यूज कर सकते हैं प्रिपरेशन पर्पस के लिए। लेकिन अभी फ्लैश कार्ड तो एक तो सारे खुल जाएंगे आपको, लेकिन आपको सारे नहीं, टॉपिक वाइज खोलें। टॉपिक क्या है अभी? जैसे आपने मीन पढ़ा है, वेरिएंस पढ़ा है, अब आज ने कोरिलेशन पढ़ लिया आपने, तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप इन टॉपिक से प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, so you can raise your question, I can answer you, otherwise you can leave the class. Yes, quiz in next class. जी, okay, thank you very much.